Class 9th. From the second last paragraph in this page, I am making you understand. You can connect your mind from yesterday's online class with this video. It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. Means when he had come from there with the writer's help. When he came back, swallow, he said, "It is winter," answered the swallow, "and the snow will soon be here." In Egypt, the sun is warm on the green palm trees. He explained again that in Egypt country, the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud. Means he is just explaining the situation there in Egypt and looked lazily about them. In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. As you have studied here, that when swallow, he explained always, means it will be fourth time that someone he was unable to help prince as he had to go to Egypt for getting barn, but the prince again and again stopped him for helping someone. And he starts saying, in the square below, said the happy prince, there stand a match girl, little match girl. Match girl means a girl who is selling matchboxes. Said the happy prince, there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter. But what happened with her? That her matchboxes, they fall in the gutter, means in water, and they are all spoiled. And obviously, if the match boxes, they fell in the water or somewhere, means the bad portion, then they would be spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money. And he knew also father would beat her अगर वो अपने घर कुछ पैसे लेकर नहीं आएगी. And she is crying. She has no shoes or stockings. Stockings means socks. And her little head is bare. Bare means without any cloth or cap. Then he said, pluck out my other eye and gave it to her, and her father will not beat her. Means again he wanted to help the girl. Who wanted to help the girl? The happy prince, with the help of swallow. I will stay with you one night longer, said the swallow. And swallow, he became agreed and said that he is ready to stay with him one night longer. But he cannot pluck his eye. You would be quite blind then. And said that if he just if he just put out his eyes, then naturally he would be blind. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. He swept past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. "What a lovely bit of glass," cried the little girl. She became very happy and she said, "What a lovely bit of glass." Means she did not know about it that was a precious stone, and she ran home laughing. And in her innocence, she simply ran home in laughing. Then the swallow came back to the prince. "You are blind now," he said, "so I will stay with you always." Now the swallow, he just fascinated with the kindness of happy prince, and he agreed to live with him forever, to look after him. Then prince said, "No, little swallow," said the poor prince, "you must go away to Egypt." "No, I will stay with you always," said the swallow. But swallow, he was not agree, and he slept at the prince's feet. At the next day, he sat on prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. Begin to recite the stories
as he had seen the strange lands. Dear little swallow, said the prince, you tell me the marvelous things. तुमने मुझे बहुत अच्छी बातें बताई हैं, but more marvelous than anything in the suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. कोई भी मिस्ट्री दुख से, माइजरी से बड़ी नहीं हो सकती. फ्लाई ओवर माई सिटी, तुम सिटी में घूम कर आओ लिटिल स्वॉलो, एंड टेल मी वॉट यू सी देयर, देखो वहाँ क्या हो रहा है. सो द स्वॉलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सो द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस. देखा जो अमीर हैं वो अपने घर में खुश हैं, वाइल द बेगर्स, जो बेगर्स हैं, जो गरीब हैं, जो किसी से मांगते हैं, वर सिटिंग एट द गेट्स. ही फ्लू इन टू डार्क लेन्स, कुछ अंधेरी गलियों में गया. कुछ वाइट फेसेस स्टार्विंग मीन्स भूख से मर रहे बच्चों के देखे. उनकी ब्लैक स्ट्रेस देखी. लिस्टलेसली मीन्स कुछ काम नहीं है उनके पास में, कुछ काम नहीं कर सकते, खाली बैठे हैं, खाना नहीं है, पैसे नहीं हैं. अंडर द आर्च वे, और एक आर्च का मतलब होता है एक गोल दरवाजे. अ ब्रिज, टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई टू कीप देमसेल्व्स वार्म. वहाँ दो लड़के पड़े थे जिन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े थे जिससे कि उन्हें ठंड कम लगे. हाउ हंग्री वी आर, एंड दे वर सेइंग दैट दे वर वेरी मच हंग्री. दे सैड यू मस्ट नॉट लाई हेयर, तुम्हें, लेकिन वॉचमैन आता है और कहता है तुम्हें यहाँ नहीं सोना है. एंड दे वॉन्डर्ड आउट इन टू द रेन, और उनको रेन में भीगने के लिए छोड़ देता है. देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस वॉट ही हैड सीन. देन स्वॉलो ही केम टू प्रिंस एंड टोल्ड ऑल द थिंग्स. ही वॉज कवर्ड विथ फाइन गोल्ड. प्रिंस ने कहा मेरे पर अभी कुछ बचा है, ये जो फाइन गोल्ड है ना बॉडी पर, इसको निकाल लो. यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाई लीफ एंड गिव इट टू द पुअर. द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक दैम हैप्पी. जो लिविंग हैं वो यही सोचते हैं कि सोना होगा तो वो उन्हें हैप्पी कर सकता है. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वॉलो पिक्ड ऑफ. उन्होंने एक एक करके वो पत्ती निकाल ली. टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे. जब तक कि जो हैप्पी प्रिंस था वो बिल्कुल डल और ग्रे दिखने लगा, मीन्स उसकी जो सुंदरता थी वो चली गई. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर. और वो किसके लिए लेकर आए? पुअर के लिए, मीन्स उस गरीब के लिए लेकर आए. एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर, लेकिन चिल्ड्रन के जो फेसेस थे मीन्स उनके फेसेस चमकने लगे. एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट. दे बिकेम वेरी हैप्पी. दे हैव ब्रेड नाउ, उनके पास अब खाना था. दे क्राइड. देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट. फिर बर्फ़ पड़ने लगी, कोहरा पड़ने लगा. द स्ट्रीट्स लुक्स एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर. स्ट्रीट्स ऐसे लगने लगी जैसे चांदी की बनी हो, क्योंकि बर्फ़ ही बर्फ़ छा गई थी. एवरीबडी बेंट अबाउट इन फर्स. फर्स का मीन्स गर्म कपड़ों में दिख रहा था. एंड द लिटिल बॉयज़ बोर स्कारलेट कैप्स. उन्होंने स्कारलेट एक बर्ड का नेम होता है और उसके रंग की कुछ कैप बनाने को स्कारलेट कैप कहा जा सकता है. एंड स्केटेड ऑन द आइस. स्केटेड मीन्स बर्फ पर स्केटिंग करना, फिसलने वाला गेम खेलना. द पुअर लिटिल स्वॉलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर. लेकिन यहाँ स्वॉलो जो था, क्योंकि उसके लिए ठंड को वेयर करना मुश्किल था, सहन करना मुश्किल था, इसीलिए तो वो इजिप्ट जा रहा था ना, और अभी वो जा नहीं पाया है. सो द पुअर लिटिल स्वॉलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस. ही लव्ड हिम टू वेल. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep themselves warm while flapping his wings. But at last he knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more, and उसने बहुत एफर्ट्स लगाए, स्ट्रेंथ लगाई कि कैसे ही वो प्रिंस के शोल्डर पर एक बार बैठ जाए. गुड बाय, उसने प्रिंस को कहा धीरे से. विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपना हाथ चूमने दोगे? आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट. स्वॉलो ने कहा मुझे, लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस. प्रिंस ने कहा मुझे खुशी हो रही है कि तुम लास्ट में इजिप्ट जा रहे हो. यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स. दैट दिस वाई ही लव्ड हिम. इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग. तो स्वॉलो ने कहा ये इजिप्ट नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ. ही वॉज गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ. वो मृत्यु के घर जा रहा है. डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप. डेथ क्या है? ब्रदर है, भाई है स्लीप का, नींद का. इज़ ही नॉट. एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट. और वो उसके पैरों पर गिरकर मर गया. एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैच्यू. और उसी समय एक अलग तरह का क्रैक
क्रैक साउंड हुआ, कुछ टूटने की आवाज़ हुई स्टैच्यू के अंदर, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कुछ टूटा हो। द फैक्ट इज़ दैट द लीडन हार्ट, जो उसका पारे का बना हुआ दिल था वो टूट गया था। हैड स्नैप राइट इनटू टू, दो भागों में, और ड्रेडफुली जो हार्ट फ्रॉस्ट था वो मीन्स उसका शोर आया था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी, अगली सुबह को जो मेयर था उस सिटी का वो वहाँ पर निकल रहा था टाउन काउंसलर्स के साथ में। जैसे ही वो उस कॉलम के पास में आए, स्टैच्यू को देखा और बोले डियर मी हाउ शेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स। डियर मी सब कोई सरप्राइज में कुछ बोलता है। उसने कहा कितना गंदा दिख रहा है ये, हाउ शेबी इंडीड। सारे काउंसलर्स भी जो उसके साथ हमेशा पीछे पीछे चलने वाले थे उन्होंने कहा हाँ वास्तव में। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वार्ड, रूबी उसके स्वार्ड से गिर चुकी थी, आइज़ नहीं थी, गोल्ड नहीं था। तो मिरर ने कहा इनफैक्ट ही इज़ अ लिटिल बेटर देन अ बैगर, ये तो बैगर से भी जैसा लग रहा है। लिटिल बैगर देन अ बैगर सेड द काउंसलर्स, एंड हियर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, डेड बर्ड भी है। कॉन्टिन्यूड द मेयर, वी मस्ट रियली इश्यू अ प्रोक्लेमेशन दैट द वर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर। तो हमें एक प्रोक्लेमेशन करनी चाहिए कि वर्ड्स यहाँ पर मरने के लिए उनका अधिकार नहीं है। एट द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, टाउन क्लर्क ने ये नोट लिख लिया। सो दे पुल डाउन द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, उन्होंने उस हैप्पी प्रिंस के स्टैच्यू को खींचा। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, कि अगर ये ब्यूटीफुल नहीं है तो यूजफुल भी नहीं रहा। जो आर्ट प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी का उसने कहा। देन दे मेल्टेड द स्टैच्यू इन अ फर्नेस, उन्होंने इस स्टैच्यू को मेल्टेड मीन्स पिघला दिया, फर्नेस मीन्स भट्टी में डालकर। लेकिन एक स्ट्रेंज थिंग हुई, जो ओवरशीर था वर्कमैन का फॉन्ड्री में, दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, उसने कहा कि ये जो ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ दिल है ना ये पिघलेगा नहीं, वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसको फेंक देना है। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप, उन्होंने उसको कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। वेयर द डेड स्वॉलो वॉज ऑल्सो लाइंग, जहाँ पर वो पक्षी भी पड़ा हुआ था। ब्रिंग मी द मोस्ट, अब क्या हुआ, एक बहुत अच्छी चीज़ हुई जो इस स्टोरी की समरी है जो आपको समझनी है। एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर दैट द स्टोरी इज टीचिंग अस द काइंडनेस, and those who are kind, those who just feel the unhappiness of others, the problems of others, they are dear to God. Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels. वहाँ पर भगवान ने ऊपर से कहा अपने एंजल्स मीन्स देवदूत से, मेरे लिए नीचे से दो प्रेशियस थिंग्स ले आओ। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लीडन हार्ट, और एंजल नीचे से एक लीडन हार्ट और डेड बर्ड लेकर आया। देन गॉड ने कहा यू हैव राइटली चूजन, तुमने बिल्कुल ठीक चूज़ किया है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज का मीन्स होता है स्वर्ग, जो मेरे स्वर्ग का गार्डन है, दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग, ये जो छोटी चिड़िया है ये गाएगी। फॉर एवन मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और मेरे जो सिटी है वहाँ पर ये हैप्पी प्रिंस का मन मेरी हमेशा प्रशंसा करेगा। राइट, सो ऑल द थिंग्स आई हैव टोल्ड यू, नाउ यू हैव टू जस्ट मीन्स अगेन रीड द चैप्टर फॉर योर exam preparations.